Hello everyone, welcome to project 21, and this project is all about the stored procedure. Here we will see the basic concept about stored procedure as well as we will practice some basic queries related to stored procedures. And this project is a part of our 25 topics, 25 projects SQL series. So ये stored procedure है क्या? ये एक section है, एक ऐसा section जिसमें कुछ procedures store होते हैं या कुछ procedures save होते हैं. And ये जो procedure हैं they are all about what? They are basically a way of writing set of codes. अब ये set of codes क्या करते हैं? ये set of codes हमें help करते हैं to see our desired output of our data set. Okay, this can be specific output, like if we want to see the data of particular customer ID, or if we want to see the data of particular any product. So this kind of data if we want to see, then we can use this set of codes. और हम बार बार रिपीटेडली यही कोड्स को ना लिखें, अपना टाइम सेव कर सकें, इसके लिए हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, किसी एक नाम से इसे सेव कर देते हैं और जब हमें फ्यूचर में ज़रूरत होती है तो हम उसको कॉल कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम ओनली सीइंग, okay, apart from only seeing or view our data, we can do many more things, like we can update our data as well for any specific requirement. For like if you want to update the data for the particular customer ID 1, if you want to update the data for particular product whose ID is 30, so like that we can update also. We can insert the new data as well as we can delete the data, okay, and many other things as well we can do using this stored procedure. Now, while creation of this procedure, the SQL statements that we use here, it can be select, insert, update, delete, join, group by, order by, and many more. And apart from this, we can also use here the built-in function. Okay, we can use here built-in function of SQL like concat and round function, sum function. There are so many built-in functions, so we can use them while creating the procedure. Okay, now ये जो हमने लिखा, जो हमने कोड्स लिखे, ये एक हमारे नॉर्मल रेगुलर प्रोग्रामिंग की तरह ही होते हैं, रेगुलर कोड ही होते हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं. इसमें सिर्फ एक जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है, जब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो हम सेंटर में अपना रेगुलर कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम अपनी पर्टिकुलर टेबल व्यू कर सकें, पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें. But at the beginning we have to write some codes. Okay, we have to write some lines जो इसको एक stored procedure coding में convert कर देती हैं. और ये starting की lines क्या होती हैं? So एक तो हम delimiter use करते हैं जिसमें हम दो ये स्लैशेस यूज करते हैं. इसका मतलब होता है कि अभी तक SQL सिर्फ इस कोलन को एक एंड मानता था. जब हमने ये कोलन लगा दिया इसका मतलब हमारा जो कोड है वो एंड हो गया है. बट यहाँ स्टोर प्रोसीजर में हम लिखते हैं डेलिमीटर और ये स्लैश. इसका मतलब है कि अब आप इस स्लैश को एंड मानिएगा. अगर हमने कोलन लगाया है तो उसको एक एंड के जैसे ट्रीट नहीं करना है, वहां हमारा कोड एंड नहीं हो रहा है. जब हमने दो स्लैशेस यूज करे उस टाइम पे आपको इसे एज अ एंड कंसीडर करना है. ओके, सो एक तो ये लाइन होती है डेलिमीटर की. देन उसके बाद हम लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर और फिर उस प्रोसीजर का नाम देते हैं कि उस प्रोसीजर को किसी नाम से हमें स्टोर करना होता है ना सेक्शन में, सो हमें वो नाम देना होता है. देन आफ्टर दैट हम एक पैरेंथेसिस ओपन करते हैं. सपोज हमें कस्टमर आईडी को अपडेट करना है, सो हम इसके अंदर लिखेंगे कस्टमर आईडी. जिस कस्टमर आईडी को अपडेट करना है जब हम कॉल करेंगे तो आप वो कस्टमर आईडी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है, और इस कस्टमर आईडी को लिखने के साथ हम इसका डेटा टाइप भी यहाँ बता देते हैं कि वो इंटीजर डेटा टाइप में ही आना चाहिए इनपुट. एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं IN, एंड दिस IN मीन्स इट इज अ इनपुट. ओके, when we call the data, when we call the procedure, so we have to use this call, and in this calling we have to ask for the customer ID. If we want to get the data, if we want to see the data for particular customer ID, suppose customer ID 5, then we have to write here 5 when we are calling that particular procedure. So at that time we will write call, फिर उस procedure का नाम और फिर यहाँ पे वो customer ID. ठीक है, and that's it. So ये जो इनपुट है ये यहाँ दिया जा सके while calling that particular procedure, ये इनपुट हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस में मेंशन करना होता है. सो ये थी एक बेसिक थ्योरी. अब हम इसको कोड्स के फॉर्म में देखते हैं MySQL वर्कबेंच में, सो दैट थिंग्स विल गेट मोर क्लियर. सो नाउ लेट्स ओपन आवर MySQL वर्कबेंच. So as we know, we are using the same data set throughout this series, and this data set is stored in this database, which is store database. So first of all, we have to write here store, use store. If you haven't created this database yet, then you can check the project setup video. There I have explained everything step by step, कैसे इसको create करना है, database को tables कैसे create करनी है. If you are a total beginner, then firstly you have to check that
and after creating this database and inserting the tables and populating the data, you can come to this video again. Okay, now हमने यहाँ use store लिखा, अब इसको हम run करते हैं और now we can see that we have entered in this store database. So let's quickly jump to the query part, and our first query is to show all orders for a customer. ठीक है, अगर हमें ऑर्डर्स चेक करने हैं फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर, सपोज कभी हमें कस्टमर आईडी 301 का ऑर्डर चेक करना है. लेट्स हैव अ लुक ओवर द टेबल ऑफ कस्टमर्स. ओके, सो सपोज कभी हमें कस्टमर आईडी 11 का डेटा चेक करना है, कभी 21 का चेक करना है, तो हम बार बार सेम कोड ना लिखें. ठीक है, हम एक कोड लिखेंगे अभी और उसको स्टोर कर देंगे. फिर जब भी हमें किसी भी कस्टमर आईडी के रिलेटेड डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, हम सिंपल अपने उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे एंड वी कैन गेट आवर रिजल्ट. Okay, so for that, first of all, we have to write delimiter and it means that अब हम SQL को ये बोल रहे हैं कि आप कोलन को एक एंड के जैसे ट्रीट मत करना. जब ये डेलीमीटर आपको दिख जाए, जब ये स्लैशेस दिख जाए, तब आप एज अ एंड ट्रीट करना ना. अब हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर and now we have to give the name of this procedure. So I am giving it a name as get order by customer. Okay, now parenthesis open और यहाँ पे हम लिखेंगे input will be customer ID and the data type is integer. So हमें जब इस प्रोसीजर को कॉल करना होगा उस टाइम पे हमें उस टाइम पे हमें इनपुट में कस्टमर आईडी देनी होगी, जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर आईडी का डेटा हम देखना चाहते हैं. देन वी हैव टू राइट बिगिन कि अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मेन बॉडी प्रोसीजर की स्टार्ट हो रही है. सो हम लिखेंगे यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ जनरल कोड लिखेंगे जिस तरह से हम किसी भी कस्टमर का डेटा देख पाते हैं. वो एक जनरल कोड जो हम अभी तक यूज करते आए हैं, दैट वी आर यूजिंग हियर, राइटिंग हियर. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स. नाउ अभी तक हम यहाँ कस्टमर आईडी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती थी वो लिख देते थे, बट यहाँ पे हमको एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है. सो हम यहाँ वो कस्टमर आईडी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ये. ठीक है, क्योंकि इनपुट में यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाएगी उसके इक्वल हो वो कस्टमर आईडी. सो हम यहाँ लिख देते हैं कस्ट आईडी, जो भी हमें इनपुट से कस्टमर आईडी मिले वो. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो जनरल कोड था वो हो गया. नाउ अब हम लिखेंगे एंड. ओके, अब ये स्टोर प्रोसीजर एंड हो रहा है यहाँ पे. अब हम वापस अपने SQL कोडिंग पे चले जाते हैं और यहाँ हम वापस जो हमारा एंड होता है उसको कोलन के थ्रू हम एंड कर रहे हैं. ठीक है ना, ये हमें एंड में इस तरह से, दिस इज द सिंटेक्स, तो हमें इस तरह से अपने जो हमारा ये प्रॉपर कोड है इसको एंड करना होता है बाय यूजिंग अ कोलन इन द एंड. ओके, नाउ इट्स टाइम टू रन दिस. आफ्टर रनिंग and we have to refresh from here, then we can see in the store procedure section, we can see the store procedure section here, and here you can see that get stored by customers procedure is saved here. ठीक है, हमने अपना एक कोड यहाँ सेव कर दिया है. अब सपोज हमें कॉल करना है इसको और हम देखना चाहते हैं ऑर्डर्स बाय अ कस्टमर, सपोज बाय कस्टमर हुज आईडी इज 35. इसका अगर हम ऑर्डर सारा डिटेल्स देखना चाहते हैं, सो हम लिखेंगे कॉल एंड देन गेट ऑर्डर बाय कस्टमर एंड इन ब्रैकेट हमको 35 कस्टमर आईडी का चाहिए था डेटा, 35 का. सो हम यहाँ पे उसकी कस्टमर आईडी लिख देंगे 35 एंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ ये 35 जो है ये बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी बिहाइंड द सीन्स. ओके, नाउ अब हम इसको रन करते हैं एंड आफ्टर रनिंग वी हैव द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर्स placed by this customers whose ID is 35. Okay, now let's change it and see the customer for customer 11 and let's call it again. So for customer ID 11 we have the list, and in this list we can see this customer has placed total 4 orders, different orders. Okay, so again and again there is no need to write the same code. We have simply stored it somewhere in the store procedure section, and now whenever it's needed we can simply call it by this. Okay, now it's time to see one more example, and the next query is to count total orders by a customer. Okay, अभी तो हमने ये लिस्ट देख ली. अब हम ये पूरी लिस्ट नहीं देखना चाहते, हम सिंपल ये देखना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर आईडी उसने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट ना आके 5 ऑर्डर किए हैं तो हमारे पास 5 नंबर आ जाए सीधे. ठीक है, तो अब हम इसके लिए लिखेंगे
सबसे पहले डेलिमीटर स्लैशेस, सो दैट आप कोलन को, हम स्किल से कह रहे हैं कि आप कोलन को एज अ एंड ट्रीट मत करें। जब हम ये 2 स्लैशेस लगा दें तब इस स्टोर प्रोसीजर की कोडिंग्स की एंडिंग है। देन क्रिएट प्रोसीजर, नाउ वी हैव टू गिव द नेम, सो आई एम गिविंग काउंट कस्टमर ऑर्डर्स, ओके, एंड देयर विल बी वन पैरेंथेसिस ओपनिंग, और यहाँ हम लिखेंगे इन विच इज इनपुट। सो इनपुट में हमें क्या देना है, इनपुट में हमें कस्टमर आईडी देनी है और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। नाउ अब हम यहाँ से प्रोसीजर की बिगनिंग कर रहे हैं, सो बिगिन, और यहाँ हम जनरल कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हमें टोटल ऑर्डर्स की काउंटिंग मिलती है। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट ऑल रोज, काउंट ऑल रोज एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर customer ID is equal to the cust ID which is input that we will give. Now end, this is the end of this procedure, and come back to our original end declaration which is colon. Okay. Now let's run it. Okay, so this procedure is also saved. Here you can see it is written get orders by customer. अब हम इसको एक बार कॉल करते हैं, so I'm writing here call, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। So हम इस प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे हैं और हमें ये जो काउंट ऑर्डर्स हैं ये चाहिए फॉर द कस्टमर आईडी 11। सो हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं 11। नाउ ये 11 कहाँ फिट हो जाएगा जाके बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पे। सो वेयर कस्टमर आईडी इज 11। ओके, नाउ लेट्स रन इट। Okay, so here we can see this total order by customer ID is 4. तो customer ID 11 ने total 4 orders place किए हैं। किसी और अगर हमें कस्टमर को देखना हो, सपोज 30 कस्टमर ID वाले कस्टमर का देखना है, so let's run it, and the total orders जो जिसकी कस्टमर ID 30 थी उन्होंने 5 प्लेस किए हैं, इनके टोटल ऑर्डर्स 5 हैं, राइट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और ये है क्वेरी थर्ड के थ्रू विच इज गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ओके, अब हमें प्रोडक्ट्स देखने हैं कैटेगरी वाइज। सो इसके लिए हम लिखेंगे डेलिमीटर क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ से हम प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, और फिर यहाँ पे हमें इनपुट देना है जिसमें हमें कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी, और इसका डेटा टाइप होगा var_cal। अब यहाँ से हमारा प्रोसीजर की कोडिंग स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इट इज़ अ सिंपल जनरल कोडिंग जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स देखते हैं कैटेगरी वाइज। सो फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स कैट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड हो गया इस प्रोसेस का, प्रोसीजर का। नाउ अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल डेलिमीटर विच इज this colon. Now let's run it. So after refreshing we can see our third procedure is also saved here. Now let's call this, and for that we will write call the name of this procedure which was get products by category, and now we have to mention the name of that category. So suppose we want to see the electronics product. Okay, now let's run this calling. So here you can see that we have the list of all products which belongs to category electronics. If we want to see the products of kitchen category suppose, so यहाँ पे हम simple लिख देंगे kitchen, and after running this we can see the full list of kitchen categories product, right? Okay, now अभी तक तो हम व्यू कर रहे थे सिंपल। अब हमें सपोज कुछ नया डेटा इंसर्ट करना है, सो हम एक नया प्रोडक्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, सो फॉर दैट लेट मी राइट द क्वेरी फर्स्टली। सो हियर वी वांट टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, अब हम नए प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे? सो उसके लिए हमें उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें हमें इनपुट में मेंशन करनी होगी। तो हमें किसी प्रोडक्ट को, किसी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो उसका नाम चाहिए होगा, उसकी कैटेगरी चाहिए होगी, और उसका प्राइस भी चाहिए होगा, राइट। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल। इसमें क्या क्या है? उसका नाम है, उसकी कैटेगरी है और उसका प्राइस है। ठीक है, अभी हम इन तीनों चीज़ों को ही लेके चल रहे हैं।
हम स्टॉक को अभी नहीं ले रहे हैं, इतनी 3 चीज़ें हम इंसर्ट कराएंगे. So for that we firstly have to write delimiter. Now create procedure and I'm giving the name is as product. Okay, now starting of the input values. So हम यहाँ पे सबसे पहले input करा रहे हैं. Let's write here only. So I am writing in and then we want the product name firstly. Okay, फिर उसका हमें data type देना होता है और हमने यहाँ डेटा टाइप मेंशन कर दिया. अब हम कॉमा लगाएंगे. अब हमें दूसरा इनपुट चाहिए तो हम फिर से IN लिखेंगे और अब हमें कैटेगरी चाहिए तो हम लिखेंगे P कैटेगरी. फिर हमें इसका डेटा टाइप देना होगा varchar एंड लेट्स मेक इट 50 लिमिट कॉमा. अब हमें थर्ड जो डिटेल चाहिए उसको एंटर करवाने के लिए हमें फिर से इन लिखना होगा विच मीन्स इनपुट और हमें ये लिखना है कि इट इज़ प्राइस डिटेल्स और फिर इसका डेटा टाइप. सो इट इज़ डेसिमल एंड इट इज़ 10,2. दिस इज इट. नाउ क्लोज. सो ये इनपुट वाला सेक्शन क्लोज हो गया. इस इनपुट सेक्शन में हमें क्या क्या इनपुट चाहिए? प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी और प्रोडक्ट का प्राइस. अब यहाँ से हम बिगिन कर रहे हैं अपना प्रोसीजर. ठीक है. सो जब हमें नॉर्मल भी कोई नया डेटा इंसर्ट कराना होता है तो हम कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू. किस टेबल में हमें करना है वो टेबल का नाम. सो यहाँ प्रोडक्ट्स टेबल में कर रहे हैं और फिर हमें नेम, कैटेगरी कॉलम और प्राइस इन कॉलम्स में हमें डेटा इंसर्ट करना है. इनकी वैल्यूज़. ठीक है. तो इनकी वैल्यूज़ नॉर्मल जब हम कोडिंग करते हैं तो हम वैल्यूज़ यहीं पे दे देते हैं बट चूँकि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल हैं, वो हमें ऑन डिमांड ही क्रिएट करनी होंगी. सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी इनपुट वाली वैल्यूज़ विच इज़ पी नेम. जो भी पी नेम में इनपुट दिया जाए वो वैल्यू यहाँ पे एंटर हो जाए. देन पी कैटेगरी. ठीक है. पी कैटेगरी अगर हमें सपोज कैटेगरी अपर केस में इंसर्ट करानी है सो हम यहाँ पे अपर का यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट इट लाइक दिस एंड हियर वी विल यूज अपर. ओके. देन पी प्राइस. नाउ एंड दिस प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट डेलिमीटर. This is our procedure which we are storing to add the new product. And let's run it, and after running, once we refresh, we can see add product procedure is saved here. All right. Now call it. Let's call add product. अब हम एक नया product add करके देखते हैं और हम add कर रहे हैं suppose iPad. Okay. और इसकी जो कैटेगरी है वो है electronics. Okay. एंड इसका जो प्राइस है वो है सपोज 45,000.00. दिस इज इट. अब हम इसको रन करते हैं. अब यहाँ पे जो एरर आई है, लेट मी कॉपी पेस्ट इट हियर. सी यहाँ पे एरर आई है दैट जो हमारी प्रोडक्ट आईडी की फील्ड थी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट नहीं है. ठीक है. उसमें हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट नहीं प्रोवाइड किया है. इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आईडी थी ये मैंने यहाँ जान के इसीलिए छोड़ी थी कि अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन. ओके. अगर हमने उसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया होता पहले ही तो ऑटोमेटिकली वो अगली प्रोडक्ट आईडी में उसको भेज देता. ठीक है. सपोज इसका एंड 122 पे हो रहा है इस टेबल का तो 123 पे उसको वो भेज देता. बट एज वो डिफ़ॉल्ट में सेट नहीं है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी मेंशन करनी होगी. अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये प्रोसीजर को यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा. ठीक है. वी हैव टू ड्रॉप इट. उसके बाद डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इनपुट और हम यहाँ इनपुट में हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी और उसका डेटा टाइप भी लिखेंगे. फिर हम प्रोडक्ट आईडी कॉलम मेंशन करेंगे. देन आफ्टर दैट यहाँ वैल्यूज़ में अब हमें लिखना है प्रोडक्ट आईडी. ओके. कॉमा. ये था. अब हम इसको फिर से रन करते हैं एंड जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा स्टोर प्रोसीजर आ गया है. अगर हम यहाँ से पहले इसको डिलीट नहीं करते और दोबारा रन करते तो फिर से एरर आती कि आपका प्रोसीजर तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब आप बार बार कैसे कर रहे हैं. ठीक है ना. अब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो अब कॉल करने के टाइम हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी कोई प्रोडक्ट आईडी. तो सपोज हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे रहे हैं 201. ओके. सो आई एम गिविंग इट 201 कॉमा एंड नाउ रन इट. So now here you can see that our new product is added. Now if you want to check it, let's check it from products table and let's check our new value. So it is added here. Okay. And stock में हमने null by default set किया हुआ है इसलिए हमें stock fill करने की ज़रूरत नहीं पड़ी.
सो ये था, इस तरह से हम कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं बेसिकली। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमें एग्जिस्टिंग में कुछ अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। सो हम चाहते हैं कि अपडेट करें किसी प्रोडक्ट का प्राइस, सो प्रोडक्ट्स प्राइस, वी वांट टू अपडेट दिस। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले डेलीमीटर और ये स्लैशेस, देन वी विल राइट क्रिएट प्रोसीजर एंड द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज अपडेट प्राइस। ओके, देन इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस पैरेंथेसिस एंड देन इन, फिर हमको प्रोडक्ट आईडी देनी होगी और उसके बाद हमें इनपुट में देना होगा नया प्राइस और इसकी जो आईडी है, इसका जो डेटा टाइप है वो है डेसिमल और दिस इज इट। नाउ अब हम करते हैं बिगनिंग ऑफ दिस प्रोसीजर। सो वी हैव टू राइट, कैसे हम अपडेट करते हैं अपनी टेबल को, उसके लिए हमें लिखना होता है अपडेट। किस टेबल में हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स टेबल में, तो हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या अपडेट करना है, क्या सेट करेंगे, तो हम सेट लिखते हैं और हमें प्राइस कॉलम में सेटिंग करनी है। सो प्राइस हमारा इक्वल हो जाए, जनरली हम यहीं पे प्राइस दे देते जो भी हमें नया प्राइस सेट करना है, बट अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू प्राइस। जो भी इनपुट वैल्यू में आएगा वो हमें सेट करना है। सो न्यू प्राइस एंड देन वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू prod id, जो भी इनपुट की होगी, राइट। नाउ वी आर एंडिंग दिस प्रोसीजर हियर एंड कम बैक टू द एंडिंग पार्ट विच इज आवर कोलन। नाउ अब हम इसे रन करते हैं एंड आफ्टर रनिंग we can see that our update price procedure is stored here. Okay, so now let's call update price and हमें क्या क्या वैल्यूज देनी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, किस प्रोडक्ट की वैल्यू हम अपडेट करना चाहते हैं। सो सपोज वी वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आईडी 4, ठीक है, हमें इस स्टडी टेबल की वैल्यू अपडेट करनी है। सो फॉर दैट वी विल राइट, अभी ये कितनी है, 7000 है। सो फॉर दैट वी विल राइट 4 कॉमा, अब हम नया प्राइस देंगे और इस नए प्राइस में हमने इसकी वैल्यू 6000 कर दी, ठीक है। एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स, सो कॉमा की नीड नहीं है, ब्रैकेट क्लोज एंड द सेमीकोलन। नाउ ओके, नाउ जब हमने इसको रन किया तो जो हमारा प्रोडक्ट में जो प्राइस था वो अपडेट हो चुका है। अब हमें ये चेक करने के लिए अपनी प्रोडक्ट टेबल देखनी होगी और हम अपनी प्रोडक्ट आईडी 4 पे जब आएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये 6000 का हो चुका है इंस्टेड ऑफ 7000। सो बाय दिस वे वी कैन store a procedure to do any kind of updation. Here we have changed the price. So these are the queries through which we have seen the functioning of stored procedure. कैसे create करते हैं, फिर कैसे उसे call करते हैं, and it is a beautiful way to proceed in a faster manner instead of writing the same code again and again. Okay, so this is it for this video, guys. See you soon with the new topic and the new project. Till then, take care, keep practicing. Bye bye.